Good evening, hello and welcome to this special election broadcast coming to you from Amethi in central Uttar Pradesh, which saw polling today in the 5th phase of the UP Assembly election. Now Amethi of course is a special place. I'll ask Ramesh to give you a few shots. We have tried to organize some chai here. We were hoping to do this in front of some dhaba. But today most dhabas are closed here because of the election, but we have tried to organize some chai here for everyone. Amethi is a special place because this is represented in the Lok Sabha by Rahul Gandhi, the Congress Vice President. It's a high profile seat and it also saw a tri-cornered contest between two Ranis, Amita Singh and Garima Singh, Garima from the BJP, Amita from the Congress, and Gayatri Prajapati, a controversial minister from the Samajwadi Party. We have a lot of young faces also in this crowd which are sitting in the middle, and we are going to get a sense from them about what they thought of this entire election. Since the ladies are represented in a minority, I'm going to go and speak to them first. Ma'am, what's your name? Anubha Mishra. Anubha, what do you do? I'm pursuing research. From where? Allahabad University. Alright, so you've come here for your vote, have you? Yeah. Alright. So I just want to know from you, you must have been raised in Amethi. Yeah. In the last 10 years or so, have you seen any changes for the better come about in this town, or has it been more or less the same? Actually, I haven't seen any change regarding the medical problems, health facilities, infrastructure, education system, unemployment. The situation has been stagnant here. But I saw little bit changes from 2014. Women are coming forward. There is little bit women empowerment just because of Ma'am Smriti Irani. All right. And the things are stagnant. Yes. So what according to you is the biggest issue that Amethi has faced in the last some time? Is it women's security? If you go out in the night, do you feel insecure, or is it something else? Is it the lack of jobs? Actually, I saw the melting pot of the corruption, security issues, problems, commercialization of education. A poor people can't give her or his child a proper education just because of commercialization. A poor people can't give the proper health facilities just because of the commercialization. People are busy in earning money. People are busy in the corrupt activities. And females and the girl child and the women section are facing lots of security issues. They can't travel. Who would you blame for this? I mean, would you blame politicians of only one party, or would you blame all politicians for it? Actually, I just want to blame the people who are supporting the corrupt leaders only. We want a good leader, just like Modi. We want a good leader who work for the development. All right. Okay. I don't want the corrupt leaders. All right. Thank you. आपका नाम क्या है मैम? संतोष पांडे। संतोष जी, आप क्या करती हैं? हम चाहते हैं कि भाई गरीबों की कुछ सुनवाई हो। आप करती क्या हैं? मैं एक खाना बनाती हूँ, हाउस वाइफ, एक गृहस्थी वाला काम करती हूँ। अच्छा, मतलब घर में ही रहती हैं? और खाना मतलब अपने ही घर की बात? नहीं, मतलब जिसे अगल बगल में खाना बनाती हूँ। खाना बनाती है। वोट तो किया ही होगा आपने आज? जी। वोट किया। ये बताइए कि आप जब वोट करने गई तो सबसे बड़ा मसला आपके लिए आज चुनाव में क्या था? मतलब किस चीज़ पे आपने वोट किया आज? सबसे बड़ा मसला आपका? अब क्या बताएं नहीं, जैसे आप अभी मुझे कह रही थी कि क्या कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे लिए कुछ हो, गरीबों के लिए। मेरे गरीबों के लिए कुछ सुनवाई हो भाई, मेरे लिए कुछ हो। मेरी एक छोटी सी बेटी है, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ नहीं है, एक किराए के कमरे में रहते हैं। हर चीज़ की प्रॉब्लम हम लोगों के सामने खड़ी हुई है। मेरे पास तो कोई नहीं है, अदरवाइज कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, सिंगल। नहीं तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं मुझे घर नहीं है, ये नहीं? आपको लगता नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं सुना। सबके पास गई थी मैं, सबसे हेल्प मांगा, कोई सुनवाई कहीं नहीं। चलिए ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। आई एम नाउ गोइंग टू गो टू दैट साइड एंड स्पीक टू अ फ्यू अदर पीपल हियर। दिस जेंटलमैन हियर इज द टीचर। आप टीचर हैं, आप बता रहे हैं। कहाँ पढ़ाते हैं आप? यहीं अमेठी में। अमेठी। क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री। क्या नाम है आपका? सौरभ त्रिपाठी। व्हाट्स योर एज सौरभ? 25। 25. So you are a young person, Saurabh. Yes. What was your biggest issue today when you went out to cast your vote today? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के नाते मेरा सवाल भी इसी से है, और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, वैकेंसी होती है, शिक्षित युवा रोजगार बहुत सारे भटक रहे हैं, वैकेंसी कोई भी निकली लेकिन पूरी हुई?
उसके स्टेप्स हो जाते हैं। अगर ठीक है वैकेंसी पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं वो चली गई हाई कोर्ट में लटक गई, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो हम कहीं ना कहीं उसमें इसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसके पीछे, और ये सिर्फ भटकते रहते हैं सिर्फ गलत सिस्टम की वजह से। अगर सिस्टम को सही कर दें तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। इस सिस्टम के खराब होने का दोषी आप किसको मानते हैं? क्या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मानते हैं, सबको मानते हैं? ऐसा है पर्टिकुलर कोई अगर चाहे तो सिस्टम अगर खराब होता है तो कोई उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सारे ही होते हैं। एक वो जो सिस्टम है चला रहा है, एक वो जिसके माध्यम से सिस्टम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Thank you so much. So there you have it, another interesting perspective here, and I'm going to go to all of these young people who are seated here. They're all university college students here. They're very eager to speak. तुम बहुत बात करना चाह रहे थे, तुम बताओ तुम क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ITI तो बहुत खुल गए हैं, लेकिन उसमें टीचर नहीं है, और टीचर भी हैं तो हम लोग ITI करने के बाद 2 साल का कोर्स है, उसके बाद हम लोग को अप्रेंटिस नहीं मिलती है कहीं पे भी, उसके बाद वो भी हो गया तो हमको लोग को जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इतना जॉब यहाँ पे कर दे कि हम अपने इंडिया में जॉब कर सकें। तो यार ये तो बहुत हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ, इतने सालों से मतलब राहुल गांधी, उनके पहले बाकी लोग, सपा के भी भाई यहाँ लोग रहे हैं, बीजेपी भी यहाँ कहती है भाई, बहुत दावेदारी कह रही थी स्मृति ईरानी के बारे में। तुमको क्यों लगता है जब इतना हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है तब इस तरह की तकलीफें तुमको क्यों है? सर कोई भी जो है टेक्निकल में दबाव नहीं देता है, वो केवल BA MA या छोटे लेवल पे जो कोर्स है उन्हीं पे दबाव दिया जाता है। जो हाई लेवल के कोर्स है, जो टेक्निकल कोर्स है, कोई भी पार्टी उसका वो नहीं करती है, केवल वही जो देखती है कि छोटी डिग्रियां बच्चों को दे दी जाए, और जो इलेक्ट्रिकल या ऐसे डिग्री हो वो उस पर सरकार अपना कोई ध्यान नहीं देना चाहती है। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? सर अश्विनी पांडे। अश्विनी, आपका सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या? डिड यू वोट? आपने वोट किया? नहीं, हमारा वोट से नाम ही हटा दिया गया, लिस्ट से नाम हटा दिया गया था। हटा दिया गया या आपने परस्यू नहीं किया? नहीं, वोट लिस्ट में नाम ही नहीं था। आई एम 20 ईयर्स। 20 years. Have you voted earlier? नहीं, इसके पहले मैंने वोट नहीं किया। So you are still waiting to cast your first vote. कोई बात नहीं. What is your biggest issue in Amethi? I'll ask you, are there enough recreational facilities? अगर आप कहीं जाके सपोज एक गेम खेलना चाहें, क्रिकेट खेलना चाहें, बैडमिंटन खेलना चाहें, कुछ खेलना चाहें, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक स्टेडियम बना हुआ है जो कि पिछले 10-20 सालों से, 25 सालों से, जब से हम इसको देख रहे हैं 20 साल से, तब से वो वैसे का वैसे ही बंद है। यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं, जिसकी वजह से वो बस खेलते रहते हैं, घर में रह जाते हैं, खेल के घर में, और वही माँ बाप बोलते हैं कि फिर अब बच्चा खेल में बर्बाद हो गया। मतलब स्पोर्ट्स के इन लोगों की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन बदनाम हो रहे हैं कि इनको खेलना नहीं आता है। I also have a student leader here with me. He is with the BJP. आप छात्र नेता हैं, MA कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताइए कि राजनीति का जो स्तर है, मैं आपसे लार्जर क्वेश्चन पूछूंगा। बीजेपी कुछ कह रही है, कसाब कह रही है, उसका जवाब कांग्रेस दे रही है, कोई कुछ कह रहा है। ये ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है? हम जैसे इतने लोग हैं यहाँ, सब लोग बात कर रहे हैं, कोई महिला सुरक्षा, कोई डेवलपमेंट, कोई खेल कूद की, तो ये राजनीति दूसरी तरफ से क्यों चल रही है? ये दूसरी तरफ से नहीं चल रही है। सपा बसपा का जो गठबंधन है, ये पहली बात पूरी पब्लिक, पूरे उत्तर प्रदेश को ठग रहा है। ठग बंधन है, गठबंधन तो है ही नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो अमेठी में अगर सपा ने कुछ किया होता तो आज एक बगल में परसोली गांव है, उसने वोट का बहिष्कार किया। वहाँ ऑब्जर्वर गए थे, वहाँ 1 घंटे तक रुके थे वहाँ, तब उन्होंने किसी तरह वोट करने के लिए कहा कि हम वोट करेंगे। अगर इन्होंने विकास किया होता ये, अगर बीजेपी के ऊपर ध्रुवीकरण का आरोप लगता है तो ये सरासर गलत है। बीजेपी केवल विकास की राजनीति करती है, और बीजेपी चाहती है कि कैसे राष्ट्र का निर्माण हो, विकास हो। वैसे वो सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी बन सकती है, क्यों नहीं बनी? आज अभी कुछ दिन पहले वो बीजेपी के इशू में आया कि वो सड़क प्रधानमंत्री या किसी भी तरह की बन सकती है। उसको बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि जैसे हम आएंगे सत्ता में तुरंत वो रोड बनेगी, इंटरलॉकिंग बनेगी। अच्छा ठीक है, so I'm going to go across from this side to that side and get more perspectives. आपका नाम क्या है? रोहित अग्रहारी। रोहित, ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ विकास की राजनीति करती है और कांग्रेस है उसकी वजह से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर हाई प्रोफाइल माना जाता है राहुल गांधी सांसद है, उस तरीके से शून्य काम के लिए कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं तो लाए, लेकिन अमेठी पे के लोगों को बेरोजगारी से रोजगार नहीं मिल पाया राहुल गांधी के रहते हुए भी। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनकी तरफ से एफर्ट तो है भाई, बहुत कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं सपा भी, तब ऐसा क्यों है? सपा के राज में तो अमेठी में लोग सुरक्षित नहीं है, ये कंडीशन अमेठी की। सपा के राज में अमेठी के लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो गठबंधन हो गया कांग्रेस सपा का, तो कैसे लोग दोनों, राहुल गांधी मिल गए, इधर अखिलेश यादव मिल गए, क्या कंडीशन हो गया अमेठी के? और दिन प्रतिदिन अमेठी की दूरता बढ़ती ही जा रही है। घटने का काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। आपका नाम क्या है? दिवाकर द्विवेदी। हाँ, दिवाकर द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? यस सर, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर है मेरा। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ पे पढ़ाई? आरपीजी कॉलेज अमेठी। आरपीजी कॉलेज में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए उतनी है? कोई फैसिलिटी नहीं सर, यहाँ पर किसी कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं क्यों है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए है कि यहाँ ये पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है अमेठी। कोई अमेठी, किसी को अमेठी का विकास दिख नहीं रहा है।
सब भ्रष्ट राजनीति कर रहे हैं, भ्रष्ट नेता हैं सब, कोई ढंग की राजनीति नहीं कर रहा है, सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में बहुत स्केप्टिकल हो यार, तुम थोड़े तो पॉजिटिव रहो यार। नहीं, किसी को अमेठी का विकास दिख नहीं रहा है।